Here, this is me again with you, and I just had a thought in my mind, and I wanted to tell you that. So, here am I with that thing. And the thing is that in the early days of my JE preparation, I wrote name of like 15 or 20 people on the piece of paper. I pasted it on the wall, on the front wall where I used to study. And I like these were the names of the people who used to hate me up to the another extent in my school life. These were the names of the people who have always doubted me or who have somehow somewhere in my life told me that you want people to get that thing and you want me, able to transform yourself into a new person, or you won't get the things you have always desired of because you have completely fallen in your life. So these were the names of those people who made me feel who made me like feel so down in myself, right? This includes some of the teachers name also. Like, yeah, let's not discuss about that here. So I simply wrote this name on a piece of paper and I pasted it on the front wall where I used to study. The reason for that was okay, जब भी in further preparation I would feel like giving up, या जब भी I feel like कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, to have some fun in life. So I'll just मैं नामों को देखूंगी and I'll remind myself that these are all the people who are waiting for you to again fall in life, right? So in that aspect, I pasted all those 15 or 20 names on the wall, on the front wall. And the thing is that, like, I guess we all know about this, right? That if you are an aspirant, so you can relate with me or maybe not. But in the very early days of preparation, we just don't know like what to do, right? We used to like I used to be so confused and everything. I like it took me much time to just adapt the syllabus thing or adapt the like पढ़ाई वाला scene, because स्कूल की पढ़ाई and जेई की पढ़ाई is far so different, right? स्कूल में शायद हमने इतना उस लेवल का लाइक पढ़ा था, बट स्टिल जेई एंड स्कूल में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? सो स्टार्टिंग डेज में व्हेन आई यूज्ड टू गेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन रॉन्ग, whenever I used to feel so down in myself, whenever I used to feel like I'm not really gonna do that, or in the very early days of preparation where I myself doubted myself up to the another extent that मुझसे नहीं होगा, राइट? बिकॉज मेरे बस की नहीं है, या जब माइंड हमें रिवाइंड करवाता है ऑल दो स्कूल मेमोरीज एंड एवरीथिंग दैट like you have suffered in your school life, right? So you initially start thinking ki like that has also happened in the past, right? So the same would happen now and you won't be like I I guess you are understanding what I'm trying to convey, right? So I pasted this name on the wall, and when I used to feel so down in myself due to the whole like J thing or पढ़ाई वाला thing, and जब नेम सामने थे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम पढ़ाई करने बैठोगे तुम्हें नाम दिखेंगे, राइट? सो एक दिन खराब गया, 2 दिन खराब गया, राइट? एंड फिर लाइक तो मैं दिख ही जाते हैं रोज उसके सामने बैठोगे, राइट? सो जब भी आई यूज टू हैड द साइड ऑन दोज नेम्स, जब भी I used to just look at those names, I used to feel more and more drowned in myself. You know why? Because वो नेम मुझे हमेशा किसी न किसी मेमोरीज को याद दिलाते थे। वो नेम मुझे हमेशा बताते थे कि शायद उस पास्ट ईयर में भी या स्कूल के कुछ ईयर्स में भी तुमने कुछ ठीक-ठाक किया नहीं है मतलब, तो शायद तुम अभी भी नहीं कर पाओगी, राइट? सो स्टार्टिंग डेज़ ऑफ जेईई प्रिपरेशन में आई यूज्ड टू फील सो डाउन इन माय सेल्फ, एंड एक वही बात है ना, हम एनालिसिस कहाँ कर पाते हैं यार खुद का, हमें नहीं पता चलता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो आई यूज्ड टू फील द होल थिंग, राइट? एंड उसके लिए एक बहुत टाइम बाद आके आई रियलाइज्ड वन थिंग कि ना हमें हमारे सामने शायद उन लोगों को प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने हमेशा हमें फ़ील करवाया लाइफ़ में कि हम इनफ नहीं थे किसी चीज़ के लिए, राइट? बट इंस्टीड ऑफ दैट शायद ना वी रियली वांट दैट we really want the names of that people in our lives जिन्होंने हमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा सपोर्ट किया हमारी लाइफ में।
ताकि हम जब उनका नाम पढ़े ना तो वी हैव दैट थिंग इन आवर सेल्फ कि चलो किसी ने तो हमें कभी ना कभी तो हमें ट्रस्ट किया था, राइट? कभी ना कभी तो किसी ने उस लेवल ऑफ ट्रस्ट को डेवलप किया था। सो हम रुकते नहीं, हम चलते जाते, राइट? सो एक दिन भी जस्ट द सेम थिंग हैपेंड कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना मुझे पढ़ने में आई गेस इतना एफर्ट्स, नॉट टू एफर्ट इज नॉट द राइट वन, मुझे पढ़ने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आ रही थी जितना अपने थॉट्स को ओवरकम करने में आ रही थी, बिकॉज माई थॉट्स वर ऑन द अनदर एक्सटेंट। आई यूज टू थिंक so negative each and every moment. I used to be so negative in myself. I used to curse myself. I used to tell so many worse things in myself. Like at that time, अगर कोई मुझसे पूछता ना कि what are a person you are or what do you expect from life, तो मैं कुछ अलग ही, लाइक आई जस्ट डोंट नो, लाइक वो मैं क्या ही थी, राइट? बट ऐसा से कि थोड़ा दिन घर पे रह के कहीं ना कहीं सही हो जाती हैं चीज़ें। सो एक दिन मैंने सब नेम को टीयर अप किया, जो पूरे 15-20 नेम्स लिखे थे उनको टीयर अप किया, डस्टबिन में डाला, और उसके बाद मैंने एक पेपर लिया उसी दिन में, और मुझे आई गेस टाइम लगा, बट उसके बाद मैंने 5 नेम्स लिखे हैं, जहाँ 5 नेम्स लिखे एक पीस ऑफ पेपर पे। उसमें ऑब्वियसली मेरे कुछ टीचर्स के नेम हैं, और हाँ, टीचर्स के नेम है, और एक दो मतलब मेरे क्लोज वंस के नेम है, राइट? उन नेम को मैंने पेपर पीस ऑफ पेपर पे लिखा और मैंने उनको स्टिक किया वॉल के ऊपर। व्हाई? बिकॉज फिर जब आगे मैं लाइफ में आई फील लाइक कि अब मुझसे नहीं होगा, सो मैं इन नेम्स को देख के कहीं ना कहीं खुद को बोलूँगी कि डूड, कहीं ना कहीं किसी ने तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में तुम पे ट्रस्ट किया, राइट? तुमको सपोर्ट किया किसी ना किसी तरह से, किसी न किसी फील्ड में, राइट? अगर तुमने उस मोमेंट में उस चीज़ को कर लिया तो तुम अभी भी कर लोगी, राइट? सो इसीलिए आई रॉट लाइक 5 नेम्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। 15-20 से वो नेम्स 5 पे आ गए। जस्ट सी द लेवल ऑफ haunting things. So I wrote 5 names on a piece of paper and उसको मैंने अपनी स्टडी वॉल पर लगाया, लाइक अभी भी मुझे दिख रहा है 5 नेम। सो whenever I used to feel so, what to say, damn, so damn lonely in my life. Whenever I used to be so sad in my life, I used to look at these like 5 names, and I don't know, like these 5 names is automatically makes me smile every time I just look at these names. You know why? Because somewhere in the past in my school life, these were the names of the people who have supported me somewhere, right? These are the names of the people who made me believe that I can conquer things, not the great things though, but the small ones too, right? So I pasted these 5 names on the wall, and like abhi bhi I'm speaking to this camera, but मेरा आई वहीं जा रहा है बार बार, because these are the names of the people who always made me feel somehow good in myself, या जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बोला है कि you can still do better, right? Because you have been doing the great things in your life. So what I want to convey through this video is that कि कभी कभी ना हम अपने माइंड में उन लोगों को लेके चलते हैं जिन्होंने हमें बहुत नॉट सो ओके फील करवाया लाइफ में। कभी कभी हम अपने माइंड को उन सब लोगों से भर लेते हैं जिन्होंने हमेशा हमें बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिलेट किया हमारी लाइफ में, जिन्होंने हमें हमेशा बताया कि हम इनफ नहीं है, नॉट बताया, जिन्होंने हमारे ऊपर वो चीज़ें थोपी हैं दैट यू आर नॉट इनफ। या कभी कभी हम उन लोगों को अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा रखते हैं जिन्होंने हमेशा हमें डाउट किया है, और हाँ, लाइक उनको उस एस्पेक्ट में रखते हैं कि हमें हमारे अंदर वो फायर आएगी, राइट? जब भी हम हमारी लाइफ में फील करेंगे कि बस अब नहीं होगा, राइट? बट द एक्चुअल थिंग इज दैट कि वो नेम्स ने अगर कभी हमें हमारे पास्ट में बहुत ड्रेन फील करवाया था, उन नेम्स ने अगर हमें हमारे पास्ट में बहुत वो फील करवाया था कि हम किसी चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हैं, तो वो अभी हमें क्यों नहीं फील करवा सकते हैं? आई गेस वो नेम्स हमें, हाँ, सबका अपना अपना चीज़ होता है, राइट? सो हो सकता है किसी के लिए वो नेम्स बहुत ज़्यादा किसी को मोटिवेटेड फील करवाएं, या वो नेम्स उनको एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी दें,
But for me, it happened like कि that used to drain my energy more and more and more. And उसके बाद I was a different person, you know. Like जब से मैंने ये 5 लोगों को अपनी स्टडी टेबल के आगे स्टिक किया है, या जब से मैं इनको देखती नहीं हूँ, मतलब नेम को देखती हूँ, आई फील समथिंग इन माई सेल्फ। लाइक ठीक है, चीज़ है डिफरेंट थिंग, राइट? एंड लाइफ की चीज़ें, लाइफ की प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट थिंग। आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट एंड, हाँ इम्पोर्टेंट आई मस्ट से, सबसे इम्पोर्टेंट एंड आई गेस सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, इज दैट की स्ट्रगलिंग विथ योर मेंटल पीस, यू नो। Like, yeah, the school trauma is dude on another level. Like, I guess I don't know like what to say. Okay, leave that thing. So, I guess this is the time to end this video, and I just wanted to tell you through this video that अपने दिल में, नॉट टू से अपने दिल में, अपने अंदर उन लोगों को रखो जिन्होंने तुम्हें कभी ना कभी सपोर्ट किया होगा तुम्हारी लाइफ में। खुद को उन लोगों से भरो, लाइक उनकी बातों से या उन सब चीज़ों से जिन्होंने हमेशा तुम्हें बताया था कि यू नो तुम इनफ हो खुद के लिए, तुम कर सकते हो उस चीज़ को, यू नो। क्योंकि जब फिर तुम अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील करोगे ना कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है या मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, सो वो नेम्स तुम्हें हमेशा फील करवाएंगे कि तुम कर सकते हो बिकॉज तुम करते आए हो। सो दिस वीडियो एंड्स हियर।